السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین کرام، میں آج آپ حضرات کے سامنے ایک بہت مشہور لفظ ہے اور عموماً پولیٹیکلی اس کا بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے اخبارات میں یا رسائل میں، ٹیلی ویژن پہ، میڈیا کے درمیان اور سیاستدان کے درمیان اور تجزیہ نگار اور تبصرہ نگاروں کے درمیان ایک لفظ جو بہت زیادہ مشہور بھی ہے اور بہت زیادہ مستعمل بھی ہے۔ یہ انگریزی کا لفظ ہے اور انگریزی ورڈ ہے فوبیا۔ یعنی اولاً اس لفظ کی ابتدا دوسرے کسی لینگویج میں ہوئی ہوگی، لیکن جو اس وقت استعمال ہے یہ انگریزی ڈکشنری کے طور پر استعمال ہے، انگریزی ڈکشنری کے لفظ کے طور پہ۔ تو اس لفظ کے اندر کا جو ڈیفینیشن ہے، معنی تو اس کے بھے یا پھر خوف، ڈر کے معنی میں آتے ہیں فوبیا، لیکن اس کا جو ڈیفینیشن ہے اس میں اگر آپ جائیں گے تو وہاں آپ لکھا پائیں گے کہ فوبیا ایک غیر معقول بہت ہی زیادہ ڈر کو فوبیا کہا جاتا ہے۔ یعنی دوسرے لفظوں میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ یہ مینٹل ڈس آرڈر ہے یا مینٹل النس کو کہا جاتا ہے، یعنی ایک خاص قسم کا ڈر، یعنی دماغی بیماری، ایک خاص قسم کی ایسی دماغی بیماری جس میں انسان بہت زیادہ کسی چیز سے ڈرنے لگتا ہے، اور ایسا ڈر، ایسا خوف جو اس کے ذہن و دماغ پر طاری ہو جاتا ہے اور ہر وقت اس ڈر کو لے کر وہ جیتا ہے، تو اس کے لیے کہا جائے گا کہ اسے فوبیا ہے۔ لیکن اس لفظ کا جو زیادہ استعمال ہے، کثرت سے استعمال ہے، وہ صحافت میں زیادہ استعمال ہے، میڈیا میں زیادہ استعمال ہے، چونکہ اس کا تعلق اس کی جو اصطلاح بن گئی ہے وہ کسی قوم کے خلاف، کسی قوم کے اندر ڈر ڈالنے کی وجہ سے جو پورے قوم کی ایک مینٹیلیٹی بن جاتی، کسی قوم کے خلاف ایک ذہن بن جاتا ہے، اور وہ ڈر کسی قوم کے لیے، کسی قوم کے خلاف، کسی قوم کے اندر جب وہ ڈر بیٹھ جاتا ہے، یا پھر یہ کہہ لیجیے کہ ڈر نہیں بیٹھتا ہے لیکن وہ ڈر بیٹھنے کا ناٹک کرنے لگتا ہے، تو اس کے لیے اس لفظ کا استعمال ہے۔ اس کو کہا جائے گا کہ فوبیا ہے، فلاں قوم کا فوبیا، یعنی جس قوم سے ڈرایا جا رہا ہے اس قوم کے ساتھ اس لفظ کو استعمال کریں گے اور کہیں گے کہ فلاں قوم کا فوبیا، یعنی فلاں قوم کا ڈر۔ لیکن اس لفظ کا جو زیادہ تر میں نے جو استعمال دیکھا ہے اخبارات، رسائل اور ٹیلی ویژن پہ، میڈیا کے اندر، صحافی حلقوں میں، وہ اسلام کے ساتھ اس لفظ کا تعلق جڑا ہوا ہے، یعنی اسلامو فوبیا ایک لفظ استعمال ہوتا ہے انگریزی کے اندر، اور وہیں سے دیگر زبانوں میں بھی اس لفظ کو کوٹ کیا جاتا ہے۔ پوری ایک اصطلاح ہے، ایک ٹرم ہے اسلامو فوبیا، جس کے معنی آتے ہیں کہ اسلام کے خلاف ڈر کا مرض۔ یعنی پہلے تو دنیا کی دیگر قوموں نے جب اسلام کی حقانیت، صداقت اور اسلام کے اصول و ضوابط کا مطالعہ کیا تو اسے لگا کہ یہ تو ایک ایسی قوم ہے، اس کے اتنے خوبصورت اصول و ضوابط ہیں، اتنا عمدہ اخلاق ہے، اتنا اعلیٰ کردار ہے، اور اس کے پاس ایک پوری دستور زندگی ہے، زندگی کے ایک ایک شعبے میں رہنمائی کی گئی ہے، مکمل زندہ زندہ جاوید کتاب ہے، اور
इस मज़हब के अंदर हर वो चीज़ है जो लोगों को अट्रैक्ट करे अपनी तरफ। इसके अंदर वो तमाम ज़खायर हैं, वो तमाम चीज़ें हैं, जिसकी वजह से लोग इस तरफ दौड़े चले आएँ। और इसके पास यानी इस मज़हब में जो भी चीज़ें राइज हैं, वो सब अक़ली हैं, लॉजिकल हैं, दलाइल से मिलती हैं। तो इन तमाम चीज़ों का जब दुनिया के लोगों ने, दुनिया के अक़वाम ने, दुनिया के जो बड़े दीगर कौमों के जो लोग हैं, उन्होंने मुताला किया और देखा, तो वो इस नतीजे पर पहुँचे कि ये तो एक ऐसा मज़हब है, जिसे अगर रोका नहीं गया, इसके खिलाफ प्रोपेगेंडा नहीं किया गया, तो ये तो बहुत तेज़ी से फैल जाएगा दुनिया के अंदर और फिर इसका एक तसल्लुत कायम हो जाएगा और पूरी दुनिया में ये एक इनकलाबी तौर पर ये मज़हब उभर कर आ जाएगा। तो फिर उसके लिए, उसको रोकने के लिए, इस तूफ़ान को रोकने के लिए, इस सैलाब को रोकने के लिए पूरी एक कौम को, पूरे मज़हब को के लिए अ दुनिया की दीगर कौमों को इससे दूर रखने के लिए और कम्युनिकेशन से दूर रखने के लिए, रवाबित से दूर रखने के लिए ट्रायल चलाया गया और मीडिया के ज़रिए से, अखबारात के ज़रिए से, मैगज़ीन्स के ज़रिए से, ड्रामों के ज़रिए से, फ़िल्मों के ज़रिए से और पूरे-पूरे ड्रामे इस तरह के तैयार किए गए, पूरी स्क्रिप्ट इस तरह की तैयार की गई जिसमें हर जगह ये दिखाया गया कि ये मज़हब जो है पूरी इंसानियत के लिए ख़तरनाक है, दुश्मन है और बदमाश है, मुजरिम है और बेतहज़ीब है और इसके पास कोई कल्चर नहीं है, कोई तालीम नहीं है और दुनिया की घटिया तरीन कौम है। इस तरीके से एक इमेज बिल्ड किया गया, एक खतरनाक इमेज, एक बदसूरत इमेज बिल्ड किया गया और उस बदसूरत इमेज के नतीजे में ज़ाहिर है कि लोगों के अंदर ये पैदा होना इस्लाम के ताल्लुक से नफ़रत पैदा होना और तनफ़ुर पैदा होना, दूरी पैदा होना ये ज़रूरी अम्र था, लाज़िम अम्र था और वही हुआ लोगों के अंदर ये इस्लाम के खिलाफ डर, नफ़रत और इस तरह की चीज़ें पैदा हुई। या ये कह लें कि पैदा नहीं हुई लेकिन दूसरा रास्ता इन लोगों ने एक तो ये कि अवाम को दूर करने का, नफ़रत दिलाने का एक ऐसा माहौल तैयार किया कि लोग इस्लाम के करीब नहीं जा सके और दूसरा तरीक़ा ये इख्तियार किया कि उसको हरासा किया जाए। इस्लाम के मानने वालों को छोटी-छोटी बुनियादों पर, इस्लामी शायर की बुनियाद पर, छोटे-छोटे बुनियादों पर उसको टॉर्चर किया जाए, उसको हरासा किया जाए, तो पॉलिटिकली पूरी कौम को दबाने के लिए और उसको ये करने के लिए पूरी एक लॉबी का इस्तेमाल किया गया। और उस लॉबी के नतीजे में ये हुआ कि फिर चोर दरवाज़ा खोल दिया गया कि अब तो हमने नफ़रत का बीज डाल दिया है अपने लोगों के बीच में और जितना भी प्रोपेगेंडा करना था कर दिया। अब जो हमारी कौम इस्लाम के खिलाफ कुछ एक्शन लेगी, डर में या नफ़रत में या कि दुश्मनी में अगर कोई ख़तरनाक स्टैंड लेती है और कहीं हमला होता है, मुसलमानों को मारा जाता है उसकी जमात पे, उसके मज़हबी इबादत गाहों पर या चीज़ों पर अगर कुछ एक्शन दुनिया की कौमें अगर लेती हैं, तो दुनिया के अफ़राद लेते हैं जो इस्लाम में से नहीं है। तो उनको बचाने का एक टर्म बनाया गया इस्लामोफ़ोबिया यानी ये शख्स जो मारा है, ये नॉर्मल हालत में नहीं मारा है, बल्कि एक फ़ोबिया एक इसके दिमाग में एक बीमारी है, बीमारी के नतीजे में ये हमला हुआ। फलाँ मुसलमान को कत्ल कर दिया गया, फलाँ जगह पे इतने लोगों को मार दिया गया।
तो फलाँ ने जो मारा उसको एक किस्म की बीमारी थी, बीमारी के नतीजे में मारा। अब जब बीमारी उसको नाम दे दिया गया तो ज़ाहिर है कि उसके खिलाफ कोई मुकदमा नहीं, कोई चार्जेज़ नहीं, किसी तरह की कार्रवाई आप नहीं कर सकते हैं क्योंकि वो एक बीमारी जब उसको बना दिया गया तो उसको बीमारी के ज़ुमरे में रखा जाएगा और फिर वो मुजरिम नहीं गर्दाना जाएगा। अगर गर्दाना भी जाएगा मुजरिम तो उतना बड़ा मुजरिमाना सलूक उसके साथ नहीं किया जाएगा। तो गोया कि ये इस्लामोफ़ोबिया इस लफ्ज़ को बनाया ही गया है इसलिए कि पहले तो इस्लाम के खिलाफ प्रोपेगेंडा करो, इस्लाम को बदनाम करो और इस्लाम को खतरनाक बताओ और फिर जब उसके नतीजे में दुनिया की दीगर कौमें इस्लाम या इस्लाम के मानने वालों पर हमला करें, तो उसके बचाने का एक रास्ता बना दिया गया कि उसको एक मर्ज़ था, डर का मर्ज़ था और डर से इसको खतरनाक समझा मुसलमान को इसलिए उस पर हमला कर दिया गया। इस तरीके से इस लफ्ज़ का वजूद अमल में आया और इसी वजह से इस लफ्ज़ का इस्तेमाल चूँकि इसका ताल्लुक कौमों से है, आपस में कौमों के कम्युनिकेशन से, रवाबित से है, चूँकि पूरी दुनिया एक घर के मानिंद है, पूरी दुनिया में तमाम कौमें कौम के लोग रहते हैं, मज़हब के लोग रहते हैं, भाँत-भाँत किस्म के लोग रहते हैं, अलग-अलग रंग के, अलग-अलग नस्ल के और अलग-अलग तहज़ीब रखने वाले, तमद्दुन रखने वाले, बोलियाँ बोलने वाले, तो तमाम किस्म के लोग एक जगह रहते हैं और ये फ़ितरी चीज़ें हैं कि आपस में इख्तिलाफ़ भी हो, मोहब्बत भी हो और ये भी फ़ितरी चीज़ें हैं कि आपस में एक-दूसरे का कम्युनिकेशन और रवाबित हो। तो ये बहुत ज़्यादा इम्कान था कि अगर इस्लाम के खिलाफ़ प्रोपेगेंडा नहीं किया जाता, तो ज़ाहिर है कि इस्लाम एक ऐसा मज़हब है, इतनी खूबसूरती है इसके अंदर और जिस तरह से अखलाक की तालीम, तहज़ीब और तमद्दुन वो सारी चीज़ें आपको लॉजिकली यहाँ मिलती हैं, सारी चीज़ें अक्ल से लगती हैं। ऐसा कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अक्ल को एड्रेस नहीं करती हैं। सारी चीज़ें अक्ल के मुवाफ़िक हैं। इस्लाम पूरे दस्तूर का नाम है। ऐसा नहीं कि सिर्फ़ इबादत तक है या किसी ज़िंदगी के एक शोबे में इस्लाम रहनुमाई करता है, बल्कि पैदा होने से लेके कब्र तक के जितने मामलात, जितने हालात और जितने मसाइल हैं, जितने मराहिल हैं, तमाम मराहिल में इस्लाम रहनुमाई करता है। इस एतबार से इस्लाम एक अज़ीम मज़हब है और एक ऐसा खूबसूरत मज़हब है जिसके दामन में हर तरह की नज़र को खींचने वाली और जज़्ब करने वाली चीज़ें मौजूद हैं। और ज़ाहिर है कि जब ये खूबी है इस्लाम की तो दुनिया की कौमें जब मुसलमानों के साथ रह रही थी तो बहुत हद तक इम्कान था कि बड़ी तादाद में बहुत जल्द एक-एक जगह पर इस्लाम फैलता और लोग इस्लाम की तरफ दौड़े चले आते। लेकिन उसको रोकने के लिए ये सारी चीज़ें की गई और प्रोपेगेंडा पैदा किया गया और ये प्रोपेगेंडा किसी भी कौम, मज़हब और मिल्लत के खिलाफ नहीं करना चाहिए। आप लोगों का काम ये है कि अपने मज़हब की तबलीग करें, तालीम करें, लेकिन दूसरे मज़हब की ना तौहीन करें और ना उसके खिलाफ किसी तरह का प्रोपेगेंडा करें, ये इंसानियत है। हम हैसियत मुसलमान एक-दूसरे हम मुसलमानों को चाहिए कि दूसरे मज़ाहिब के लोगों का एहतराम करें और इंसानियत की बुनियाद पर उनसे मोहब्बत, उनसे हमदर्दी होनी चाहिए। उसी तरीके से दूसरी कौमों को भी दुनिया के अंदर जितनी कौमें बसती हैं, उनको भी चाहिए कि बहैसियत इंसान सब एक हैं, तो एक-दूसरे से मोहब्बत, रवादारी होनी चाहिए। और सबको अपने मज़हब पर चलने का और अपने मज़हब पर अमल करने का, अपने मज़हब की तबलीग करने का इख्तियार है। लेकिन किसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा करके या अ, उसका मिसयूज़ नहीं करना चाहिए और ये किसी भी कौम के जो मज़हबी लोग हैं और जो समझदार लोग हैं, जो इंसानियत से जिनको मोहब्बत है और तो ज़ाहिर है कि वो इन सब चीज़ों को पसंद नहीं करते हैं।
लेकिन जो भी चीज़ें एक ख़ास नज़रियात की बुनियाद पर वजूद पाती हैं, तो तमाम चाहे उस चीज़ का रंग जो भी हो, लेकिन उसके पीछे वही नज़रिया कार फ़रमा होता है। उम्मीद करते हैं कि ये जो लफ्ज़ है इस्लामोफ़ोबिया या फ़ोबिया, इस लफ्ज़ से आपको वाक़फ़ियत होगी। आपसे दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे पैगाम को पहुँचाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लें कि हमने इरादा किया है कि इंशाअल्लाह इस तरह के इन्फॉर्मेटिव अ, वीडियोज़ बनाते रहेंगे, डालते रहेंगे, मुख्तलिफ़ तारीख़ी और इल्मी, रूहानी, दीनी और असरी हर तरह की जो भी चीज़ें मुझे लगेगी कि इस पर बात करनी चाहिए, उस पर इंशाअल्लाह बात हम करते रहेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आप के पास हमारी वीडियोज़ पहुँचती रहेगी। उसी तरीके से आपसे दरख्वास्त है कि दीगर लोगों तक भी इस पैगाम को पहुँचाएँगे, शेयर करेंगे, तो ज़ाहिर है कि हमारा पैगाम पहुँचता रहेगा और जो भी इल्मी काम हम करेंगे और आप उसके नतीजे में सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे तो हमारी हौसला अफ़ज़ाई होगी और हम बेहतर तरीके से हम काम को कर पाएँगे इंशाअल्लाह।